Hello viewers, welcome to my channel Quanta Education. In this video, we are going to study poem Wind written by Subramanya Bharti. Here you can see a picture of Subramanya Bharti. He had a short lifespan from 1882 to 1921. Subramanya Bharti is a great Tamil writer, poet, journalist, famous for his patriotism in the pre-independence era. He is also known as Mahakavi Bharati. Next in front of you is a picture of A.K. Ramanujan. He is a Kannada and English poet, well known for his translation of classical and modern poetry. This poem Wind has been translated by him from the Tamil. Now let's see the introduction of the poem. We all know that wind is a natural phenomenon. In this poem, the poet talks to the wind. This poem में poet directly wind से बात कर रहा है. The power of wind has been described and the poet says that wind is destructive. तो इस पोएम में विंड की पावर को डिस्क्राइब किया गया है और पोएट कह रहा है कि ये विंड पावर डिस्ट्रक्टिव है, दैट मीन्स विनाशकारी है. ही हैज़ लिंक्ड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड टू द एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ. तो पोइट ने यहाँ पर विंड की डिस्ट्रक्टिव पावर को लाइफ की एडवर्सिटीज़ के साथ लिंक किया है, दैट मीन्स जोड़ के दिखाया है. एडवर्सिटीज़ क्या होती हैं? जीवन में जो भी हमें हार्डशिप्स, ऑब्स्टैकल्स, कठिनाइयाँ या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनको हवा की विनाशकारी शक्ति के साथ जोड़कर दिखाया है. The poet says that the weak people break down, but stronger people emerge out of adversities stronger. तो पोइट कह रहा है कि जो कमज़ोर लोग हैं वो लाइफ के एडवर्सिटीज़ के सामने ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दैट मीन्स बिखर जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गर पीपल और ज़्यादा इन चुनौतियों के सामने मजबूत होके सामने आते हैं. The poem gives an important message that we should be mentally tough and physically strong in order to survive the hardships of life. तो इस पोएम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे किया गया है कि हमें मेंटली एज वेल एज फिज़िकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि हम लाइफ की हार्डशिप्स का सामना कर सकें. A weak person breaks down like a weak building and crumbles. Crumbles means बिखर जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, ढह जाना. कि जीवन की मुश्किलों के सामने एक कमज़ोर व्यक्ति एक कमज़ोर बिल्डिंग की तरह बिखर जाता है. We must make these destructive forces our friends with our strength and determination. In the last, the poet inspires the readers to make the destructive forces our friends. यानी कि अगर हम जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों को अपना दोस्त बना लें तो हम इनसे आसानी से जूझ सकते हैं. और कैसे हम इन्हें अपना दोस्त बना सकते हैं? विद आवर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन. स्ट्रेंथ मीन्स ताकत एंड डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय. Now let's move on to study the poem Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. Now in the first 4 lines the tone of the poet is very soft. He asks the wind to come softly. और वो कह रहा है कि विंड तुम विंडोज़ के शटर्स को मत तोड़ो और पेपर्स को मत बिखेरो. स्कैटर मीन्स बिखेरना. और शेल्फ पर जो बुक्स रखी हैं उन्हें नीचे मत गिराओ. क्लियर? नेक्स्ट, देयर लुक व्हाट यू डिड. यू थ्रू देम ऑल डाउन. You tore the pages of the books.
You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Now, in the next four lines, the tone of the poet is a little sharp. He's scolding the wind for its action. वो कह रहा है कि देखो तुमने क्या किया, देयर लुक व्हाट यू डिड, तुमने सभी चीज़ों को नीचे गिरा दिया और तुमने सभी बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया और तुम फिर से बरसात को ले आए। और इस नेक्स्ट लाइन में वो सीधा सीधा डायरेक्टली विंड को पॉइंट आउट कर रहा है कि तुम वीकलिंग्स का मजाक उड़ाने में बहुत ही क्लेवर हो, शातिर हो। वीकलिंग्स मीन्स कमज़ोर प्राणी। क्लियर? Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. Here the poet says कि नेचर में या लाइफ में जो भी चीज़ें कमज़ोर होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग विंड क्रश कर देती है, कुचल देती है और साथ ही विनो कर देती है। विनो मीन्स दूर धकेल देना। Now with the help of this picture we will understand the meaning of winnowing. तो हम सब ने गाँव में देखा है कि किस तरह से लोग हवा की मदद से जो अनाज को बरसाते हैं। इसके लिए एक सूप का इस्तेमाल किया जाता है। सूप मीन्स छाछ। और इसमें अनाज को रख कर और ऊंचाई से नीचे डाला जाता है और हवा के डायरेक्शन के साथ साथ अनाज में जो भी धूल या भूसी के कण होते हैं जो कि कमज़ोर होते हैं, हल्के होते हैं, वो सब दूर चले जाते हैं, बह जाते हैं और जो अनाज होता है जो कि स्ट्रॉन्गर होता है उस धूल से, वो नीचे आ जाता है, यानी वो बना रहता है। He won't do what you tell him. In the next line, the poet is saying that wind has free will. वो किसी की इच्छा से नहीं आती और ना ही किसी की इच्छा से जाती है, वो किसी की नहीं सुनती। In the same way, adversities of life do not listen to anybody. ना ही जीवन में मुश्किलें किसी के कहने से आती हैं और ना ही किसी के कहने से जाती हैं। So come, let's build strong homes. Here the poet is advising the readers to come and build strong homes. So कह रहा है कि हम आओ, हम मजबूत घर बनाते हैं। Let's join the doors firmly. कि हम अपने दरवाज़ों को मजबूती से बंद करते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने शरीरों को हम मजबूत बनाएं। एंड मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और साथ ही अपने मनों को भी हम मजबूत करें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। वो कह रहा है कि अगर हम ये सब करते हैं तो विंड या कहें कि लाइफ की एडवर्सिटीज़ जो हैं हमारी फ्रेंड्स बन जाएंगी। द विंड blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Now in the last four lines, the poet is praising the power of wind. He is presenting here the constructive power of wind. कि strong wind जो है वो जो छोटी आग होती है, हल्की लो होती है, उसको तो बुझा देती है, लेकिन अगर बड़ी ज्वाला हो तो वो उसको और ज़्यादा फ्लरिश करती है, और ज़्यादा उसको भड़का देती है। उसी तरह से जो जीवन में जो भी मुश्किलें होती हैं, चुनौतियाँ होती हैं, उन सब के सामने कमज़ोर लोग घुटने टेक देते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्गर पीपल होते हैं वो उसमें और ज़्यादा मजबूत होकर सामने आते हैं। इसीलिए हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। तो लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने वो अच्छे हैं, क्योंकि वो हमारी
लाइफ में हमारी पर्सनालिटीज़ का जो बेस्ट पार्ट है उसको सामने लाते हैं, इसीलिए वी प्रेज हिम एवरी डे। हमें इन एडवर्सिटीज़ को प्रेज करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स ही सेज दैट द एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ आर वर्दी ऑफ बीइंग worshipped. So we have seen in the poem that the action of the wind is symbolical of the adversities or challenges that one has to face in life. We also see that wind is presented here as a paradoxical element. That means its destructive as well as constructive aspects are presented in the poem. The power of wind is terrifying and destructive, but on the other hand, it brings out the best within an individual. So, it is constructive also. Now let's move on to discussing the textual questions. Question number 1. What are the things that the wind does in the first stanza? First stanza में कौन कौन से काम जो है wind करती है? So answer, the wind breaks the shutters of the windows, scatters the papers, throws down the books from the shelf, tears the pages of the books, and brings showers of rain. Now we will move on to question number 2. Have you seen anybody winnow grain at home or in a paddy field? क्या कभी आपने किसी को अनाज बरसाते हुए देखा है कहीं पर? What is the word in your language for winnowing? तो उसके लिए, अनाज बरसाने के लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं अपनी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में? What do people use for winnowing? winnowing के लिए वो क्या यूज़ करते हैं? Give words in your language if you know them. So answer, yes, I have seen women winnowing grain at home in the villages. Winnowing is generally known as patakna, pichorna or anaj parchana in Hindi. The village people use the winnowing fan known as chaj in Hindi for winnowing. Now question number 3. What does the poet say the wind god winnows? विंड गॉड किस चीज़ को दूर धकेल देती है? आंसर, द पोइट सेज दैट द विंड गॉड विनोज द वीक क्रम्बलिंग हाउसेज, डोर्स, राफ्टर्स मीन्स वुडन बीम्स, जो छतों पे लगाए जाते हैं लकड़ी की कड़ियाँ, वुड, बॉडीज, लाइव्स एंड हार्ट्स, एंड देन क्रशेज दैम ऑल. क्रशेज मीन्स कुचल देना. Next question 4. What should we do to make friends with the wind? हमें wind के साथ दोस्ती करने के लिए क्या करना चाहिए? Answer, to make friends with the wind, the poet asks us to build strong homes, join the doors firmly, and practice to make our bodies and hearts stronger. Next, question number 5. What do the last 4 lines of the poem mean to you? Answer, पोएम के जो लास्ट 4 लाइन्स हैं उनका मीनिंग पूछा गया है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो आंसर, इन द लास्ट 4 लाइन्स द पोएट इंस्पायर्स अस टू फेस द विंड which symbolizes the hardships of our lives courageously. तो लास्ट के 4 लाइन्स में पोइट हमें इंस्पायर कर रहा है कि हम विंड को फेस करें, सामना करें उसका, जो कि हमारे जीवन में मुश्किलों का प्रतीक है, और इन मुश्किलों और चुनौतियों का हमें करेजियसली यानी हिम्मत से सामना करना चाहिए. He tells us that the wind can only extinguish the weak fires. और वो ये पोएट ये भी बताता है कि स्ट्रॉन्ग विंड केवल छोटी आग को बुझा सकती है. एक्सटिंग्विश मीन्स बुझाना, ख़त्म करना. इट इंटेंसिफाइज द स्ट्रॉन्गर वंस. लेकिन अगर
बड़ी आग हो तो वो उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई करती है, भड़काती है। सिमिलरली एडवर्सिटीज डेटर द वीक हार्टेड बट मेक स्ट्रोंगर दोज हु हैव अनफॉल्टरिंग विल। लेकिन जिनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, ऐसे लोगों को जीवन की कठिनाइयाँ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और जो कमज़ोर लोग हैं वो उसके सामने बिखर जाते हैं। In such a case, befriending the wind or the hardships of life makes it easier for us to face them. तो इसलिए अगर हम लाइफ की एडवर्सिटीज़ के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो फिर हम उनका सामना आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड इन एंगर और विद ह्यूमर। तो पोएट विंड से किस तरह से बात कर रहा है, गुस्से में या फिर मजाकिया तरीके से। तो यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस, इज़ इट लाइक द पोएट्स। तो क्या आपने भी कभी विंड को कुछ विनाश करते हुए देखा है, क्या आपके भी विचार पोएट के जैसे हैं। आंसर, द पोएट स्पीक्स टू द विंड इन एंगर। पोएट इस पोएम में विंड से गुस्से से बात कर रहा है। यस आई हैव विटनेस स्टॉर्मी वेदर एंड आई हैव सीन द विंड अपरूटिंग ट्रीज, कि हमने भी पेड़ों को उखाड़ते हुए जो है तेज़ हवाओं को देखा है। आई हैव वॉच्ड ऑन द टेलीविजन मैनी इंस्टांसेस वेयर विंड हैज़ कॉज्ड डिस्ट्रक्शन क्रशिंग हाउसेज विद पीपल स्टक इनसाइड, कि बहुत सारे हमने टीवी पर भी इस तरह के उदाहरण देखे हैं कि कैसे जो तेज़ तूफ़ान में लोगों के घर उजड़ जाते हैं। नो, माई रिस्पॉन्स वुड नॉट बी सिमिलर टू द पोएट। Violent wind causes destruction, but its energy, if harnessed, can be utilized in generating electricity and for other productive purposes. तो यहाँ पर आप अपना रिस्पॉन्स, अपना नज़रिया यहाँ पर रख सकते हैं। मैंने इस तरह दिखाया है कि मेरा रिस्पॉन्स पोएट के रिस्पॉन्स से सिमिलर नहीं है। वायलेंट विंड ज़रूर विनाश करती है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं और भी बहुत सारे उत्पादक कार्यों में हम उस एनर्जी को, विंड पावर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो हेयर। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।